everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. Anish Sharma and today I will discuss the part B of Life Sciences. This is a questions from CSIR JRF Net which was held on December 2017. तो मैंने पार्ट सी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं. नॉट ऑल क्वेश्चंस हैज बीन डिस्कस्ड बट जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेनली स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम्स इन graphical questions, so I already have discussed that. So if you have missed that, you can get that link from my description box. So first question is choose the correct statement from the following. तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. So first statement is disulfide bond is a 20 residue peptides can be formed only if the cysteines are adjacent to each other. So if it is saying cysteines are adjacent to each other, it means cysteine are side by side. So it is not the conditions. It can be anywhere in the amino acid chain or in the peptides. It will form disulfide bonds. So it is not the condition. So statement is wrong here. Next is the amino acid isoleucine has only one chiral center. We know that isolation don't have only one center. Chiral center means the carbon atom having all the four groups different. So we know isolation is not the chiral, has only one chiral chain. It's also wrong. Come to the next. Both bases and sugar contributes to the chirality of the nucleic acid. ये भी नहीं होता है because दोनों contribute नहीं करते हैं. Only the sugar contribute the chirality of the nucleic acid. Last is the pI of aspartic acid is less than that of the glutamic acid. It is right because it is approximately 3 and glutamic acid का pI value approximately 4 होता है. Side chain की अगर बात करें तो if we talk about the side chain or the R group of aspartic acid and glutamic acid. Okay, so move to the next. Next is indicate the incorrect statement from the following. This question is quite easy because if we talk about the enzymes, I will directly come to the answer. Answer की ओर बढ़ेंगे. Enzymes are not inhibited irreversibly by heavy metals such as silver and mercury and silver. ऐसा तो होता है कि irreversibly ये इनहिबिट करता है बिकॉज अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाए देन अगेन एंजाइम विल बिकम एक्टिव. सो द आंसर विल बी हियर 3. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं सेक्शन 3 में सेक्शन बी में जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. दैट यू जस्ट नीड टू मग अप दैट. आपको उन चीज़ों को याद रखने की जरूरत है. तो आई विल बेसिकली फोकस ऑन द क्वेश्चंस which need explanation. Okay, so I am skipping most of the questions. Yes. What is the effect of ATP and citrate on the glycolysis? We know that in any chains reaction, क्या होता है end product usually inhibit the process या हम उसे बोलते हैं allosteric inhibition. अगर concentration ज़्यादा हो जाए उनके reactants के product का then it will inhibit the processing of reaction. ये reaction को proceed करने नहीं देगा. For example, glycolysis का end product क्या होता है? अगर increase in the level of ATP, glycolysis leads to synthesis of ATP. 8 ATP is synthesized during glycolysis and pyruvate is formed. So pyruvate enter into Krebs cycles. Krebs cycles में जब enter करता है what it will form? Pyruvate combined with oxaloacetic acid and it will form the citrate. So it is also one of the product of the glycolysis in the case of aerobic reaction. So अगर हमारा product का concentration बढ़ जाएगा, if product concentration will increase, it can be either ATP or citrate, it will inhibit the glycolysis. ये glycolysis को stop कर देगा. So the answer will be it inhibits glycolysis. Next question. Yes, this was most controversial question because most of the students thought it would be upper left, but here it is talking about the D amino acid because D amino acid basically what is it? It is the mirror image of L amino acid. So it will also be available in the
मिरर इमेज इन क्वाड्रेंट ऑल्सो। ओके, अगर एल यहाँ पर है तो डी इस जगह पे प्रेजेंट होगा, 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, इसलिए इट विल बी ऑन द लोअर राइट साइड। Next is, in a signaling event, binding of an extracellular ligands activates G protein coupled receptors that eventually activates phospholipase C beta. Which one of the following statement truly reflects the function of phospholipase C beta? I will show you a cycle of this. So is what happens. It is basically take place in the intestine where there is absorption of glucose. Okay, so what happened? Phospholipase C will break down into diacylglycerol and IP3. It will activate as IP2 to IP3. So the answer will be number 3. Phospholipase C beta converts PI45 यानी P2 to diacylglycerol and IP3 without any doubt. Next question is, it's also quite simple because we know we have to find out what, select a cellular body which is not a part of nuclear bodies. Nuclear body का जो part ना हो, so we know that P bodies is found in the cytosols while all the nucleolus क्या होता है, site of rRNA synthesis. Chiasal bodies is also present in the nucleus. इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्लस्टर्स, इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्लस्टर्स का मतलब होता है वैसा जैसे कि अगर इस टाइप का कुछ अगर क्लस्टर्स आपने देखा होगा ना, दो क्रोमेटिन के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, तो कोई पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है इस क्रोमोसोम में, देन इट विल बी कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर पोजीशन while the other protein chromatin having the protein code for the another proteins will be confined to another place. तो हर एक प्रोटीन का क्रोमेटिन पोर्शंस एक अपने पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट होगा, तो देन इट इज नोन एज इंटरक्रोमेटिन ग्रैन्युल क्लस्टर्स. ओके, सो द आंसर विल बी पी बॉडीज. Which one of the following statement about chromatin is not correct? So we know that if we talk about the chromatin, it is present as a nucleosome unit in the nucleus. तो nucleosome क्या होता है? It has 4 histone protein over which chromatin fibers are wrapped around. Chromatin fiber in histone proteins के चारों तरफ bonded होंगे और approximately 1.6 times ये उनके होते हैं. और जो ये एंड की बात कर रहे हैं कि एंड में H2A प्रेजेंट होगा, दिस एंड में we can see here it is not present at the end में present नहीं है ये, it is present in the nucleolus in the middle portions where chromatin is wrapped around it. और हर एक हिस्टोन प्रोटीन जो है that is in the dimer form, so ये octide form में रहता है और इसके एंड जो सील होते हैं that is sealed by H1 histone protein. Okay, so the statement wrong was it was number 2. H2A, H2B bind to both the entry and exit ends of DNA in nucleosomes. Rather, it was by the H1. Next is, during eukaryotic cell division, metaphase to anaphase transition is regulated by the degradation of. हम लोगों ने ये सारे के नाम सुने हैं और ये सारे के सारे एम फेज में फंक्शन करते हैं, बट द आंसर विल बी साइक्लिन B1. व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपन, एनाफेज में क्या होता है, दिस टू क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल की ओर माइग्रेट करते हैं. अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहा या फिर काइनेटोकोर विल नॉट बी अटैच्ड विद द क्रोमेटिन फाइबर्स, तो क्या होगा, बर्ड एंड मैड कॉम्प्लेक्स विल बी अटैच्ड हियर. जब तक ये कॉम्प्लेक्स अटैच रहेंगे, एपीसी विच इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ये CDC20 के साथ बॉन्डेड रहेगा. एंड दिस ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पार्ट सी में भी था. ओके, सो व्हाट विल हैपन, मैड विल जब प्रॉपर बाइंडिंग रहेगा, ऑन दैट केस व्हाट विल हैपन, मैड विल डिसोशिएट APC और ये फर्दर साइकिल में नहीं जाएगा. लेकिन जब प्रॉपर बाइंडिंग रहेगा, then what will happen, cyclin B will be degraded and
CDK1 will become inactive form, and another point will be that on the proper alignment, जब proper alignment रहेगा और जब chromatin kinetochore साथ attach रहेगा तो securin जो होगा separase enzymes को जो inhibit कर रहा था binding से, ये भी degrade हो जाएगा and separase will become active. What does separase do? Separase जब active हो जाएगा, it will dissolve the this proteins in between the chromosomes, और अब क्या होगा, दोनों chromosomes will move toward the opposite pole. So the answer will be basically cycling B1. Move to the next question. One of the mechanisms used by bacteria for adaptation to change environment is altering transcription of their genes. In this regard, which one of the following response is not found in bacteria? लैक ऑप्टॉन में भी आपने पढ़ा होगा, बेसिकली प्रोमोटर एंड रेगुलेटर, दिस टू रेगुलेट्स द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो अगर हमें अनफेवरेबल कंडीशन में डाला जाए, व्हेन वी आर इन द अनफेवरेबल कंडीशन, देन व्हाट विल हैपन ऑन दैट टाइम? क्या हो सकता है उस कंडीशन में? प्रोमोटर अपने आप को इस तरह से करेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन को इनएक्टिवेट करे या एक्टिवेट करे. ये एक्टिवेट जैसे कि कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कि उसे एडवर्स कंडीशन में एडजस्टमेंट दे, ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है. ओके, सो अ जीन विथ टू डिफरेंट प्रोमोटर्स फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट कंडीशन, इट कैन बी पॉसिबल. यूज ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर, different sigma factors are there for the transcription of each different genes. जैसा आपने पता होगा सिग्मा 70, सिग्मा 32 ऐसे डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. So the statement is also right. And first I will go to the last statement. Expression of anti-sigma factor. Anti-sigma factor भी present हो सकता है. Anti-sigma factor will be present there. It means it will prevent the transcription of particular protein. तो अगर उस पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि एडवर्स कंडीशन में और भी एडवर्स कंडीशन को प्रमोट करे, वैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर वो हॉल्ट कर देगा, ऑन दैट टाइम व्हाट विल हैपन? ट्रांसक्रिप्शन विल बी हॉल्टेड आउट. लास्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टरनेट अल्फा बीटा बीटा डैश सबनेट्स. नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बीटा बीटा डैश सबनेट जो होता है दैट इज द फिक्स वन एंड इट बॉन्ड एट पर्टिकुलर पोजीशन. जैसे कि हमें पता है कि प्रोमोटर रीजन कंसिस्ट ऑफ यूपी एलिमेंट्स -35 रीजन स्पेसर -10 रीजन एंड देन आरएनए स्टार्ट साइट वेयर फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स. ये 80 रिच रीजन होता है. -35 रीजन जो होता है दैट इज TTGACA रिच रीजन. -10 region is known as data box. And what happened? This two is the alpha region and the rest over is beta, beta dash omega region of DNA RNA polymerase जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे बॉन्ड करता है. जैसे कि अल्फा रिकॉग्नाइज करता है अपर एलिमेंट को, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर बेसिकली -35 रीजन को रीड करता है एंड बीटा बीटा डैश -10 रीजन को रीड करता है. So this portion basically is always constant. Only the factor जो कि change होता है that is the sigma factor. So the statement third will be wrong. Next come, it's quite theoretical one. Which one of the following lambda proteins act both as the activator and repressor of transcription? We obviously without any doubt it will be CI protein because यहाँ पर ही आकर के क्रो जीन्स के भी क्रो प्रोटीन्स भी यहीं आकर बाइंड करते हैं. ठीक है. So next question is highly specific inhibitors that targets the phosphorylation activity of transcription factor 2H is added to the in vitro transcription reaction. Which one of the following steps is most likely to be affected? जो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का स्पेसिफिक होगा दैट फैक्टर विल बी अफेक्टेड. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जब आके बाइंड करता है देन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, जो भी फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का होगा दैट विल बी अफेक्टेड. ओके, सो लेट्स लुक व्हाट इज एक्चुअली द फैक्टर. एक्चुअली RNA polymerase 2 कंसिस्ट ऑफ 12 सबयूनिट्स और ये इट्स क्वाइट स्पेसिफिक इन इट्स नेचर. इफ दिस इज द प्रोमोटर रीजन, अगर ये प्रोमोटर रीजन है यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA के लिए, देन व्हाट हैपन? फर्स्ट टाटा बाइंडिंग फैक्टर recognize the Tata site, then transcription factor 2B will help to stabilize the Tata binding factor with promoter. Then
अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अगर वीक हो, देन टाटा बाइंडिंग फैक्टर 2 विल A will stabilize it. Then RNA polymerase is come along with the transcription factor 2F. Okay, 2F, not by 2H. Then H and E come and it will form the close complex. Now back to the questions. First is transcription of binding of RNA polymerase to promote sequence. तो RNA polymerase का बाइंडिंग कौन करा रहा था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, नॉट H. ओके. Promoter clearance, yes, promoter clearance is the function of transcription factor 2H. Recruitment of transcription factor 2D, आपने देखा क्या कहीं कि transcription factor 2D था? It was not there. Open promoter complex formation, promoter complex formation, that was the formation of close complex formation. तो ये भी नहीं है, तो ये जो affected होगा that will be is the promoter clearance, promoter region का clearance के लिए. अब इसके बाद क्या होता है? after forming the close complex, ये polymerase enzymes move करना शुरू करता है. It means start functioning. So the affected one will be promoter clearance. Okay. Next question is, ये भी theoretical है. So during eukaryotic promoter synthesis, stress condition result in activation of specific kinase leading to phosphorylation of a key translation initiation factor that inhibits protein synthesis from a huge number is without any dot. It is eukaryotic elongation factor 2 alpha. Okay, आप इसे याद कर लेना. Yes, this question transferrin. 33 number question. Proteins with cytoplasmic domains having tyrosine kinase activity do not act as receptor for. मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आपके लिए, वो इसलिए बिकॉज ये क्वेश्चन का लिंक कहीं और से भी. अगर आपको इस टाइम पे इस जो क्वेश्चन ये जो टाइम आपने जो दिया एग्जाम, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होता तो इसका क्या है, क्वेश्चन पेपर में ही इसका आंसर दिया हुआ था. The answer for this question was present in the question paper itself. आप याद रखना ये 33 नंबर क्वेश्चन. वैसे इसका आंसर ट्रांसफेरिन है बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे वी नो कि ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं. जितने भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्मिक साइड में रेसेप्टर्स से बाइंड करते थे और ये साइटोजोलिक साइड में, और मैट्रिक्स साइड में क्या होता है? टायरोसिन काइनेज गेट एक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन और ये फिर कैस्केड मैकेनिज्म से दूसरे को एक्टिवेट करते थे. ओके. नेक्स्ट इज ये दिस इज फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चन. ओके. सो द आंसर विल बी हियर हेडजहॉग प्रोटीन व्हिच बेसिकली बाइंड टू द, जब हेडजहॉग प्रोटीन बाइंड करते हैं स्मूथन प्रोटीन को, देन द प्रोसेस विल बी एक्टिवेटेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज junctions which tether cytoskeleton filament inside the cell is known as, it is obviously anchoring junctions जो कि cytoskeleton से होल्ड करता है. occluding junctions क्या होता है? that is the tight junctions. ये प्रिवेंट करते हैं एक सेल्स में ही दो डिफरेंट बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि इस साइटोप्लाज्म एंड दिस साइटोप्लाज्म या दिस पोर्शन विल नॉट गेट मिक्स विद दिस पोर्शन. चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस, ये तो हो ही नहीं सकता because what does channel forming junctions mean? It will be form channel for any ions or any transportation, so this cannot be there. signal relaying functions, ये भी नहीं हो सकता because ये क्या है, किसी फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं. साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स से को होल्ड करने में कौन हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली एंकरिंग प्रोटीन जो होंगे वो हेल्प करेंगे. ओके. और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे मेजर रोल होता है यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम का भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर जी भी ओनली जी इज गिवन, सो द आंसर विल बी जी. This is just match the following type questions, so I will not explain you because you all know the holoblastic cleavage means whole ovum will go cleavage. Meriblastic means half of the ovum will go cleavage. So I am directly coming to the answer. The answer is number 1. This question was quite easy. अगर आपने developmental biology नहीं भी पढ़ा होता, then even you can solve this question because answer is itself in the question. As you can see here,
first statement was there, we have to find out the true statement or the correct statement. पहला statement था the gene encoding TBX5 is transcribed in limb fields of hind limbs. I don't know. Suppose I don't know that whether it's the hind limbs or forelimbs or anywhere else. Second statement is that TBX4 is in the forelimbs. अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होना था, ठीक है, बिकॉज अगर TBX4 हिंड लिम्स में है तो TBX5 अगर हिंड लिम में है देन TBX4 विल बी इन द फोर लिम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप आइए, जीन इनकोडिंग आइसोलेट 1 TBX4 एंड PIX-X आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रिज्यूमेटिव हिंड लिम्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर लिम्स, ये करेक्ट होने का चांसेस है बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर बोल रहा है जीन कोडिंग आइसोलेट 1 TBX4 एंड PIX-X आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रिज्यूमेटिव फोर लिम, यहाँ पर फोर लिम था, ये स्टेटमेंट गलत था तो ये स्टेटमेंट वो ऑब्वियसली गलत होगा, तो बचा क्या आपका नंबर 3। तो क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पर आंसर छुपा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई टू मैनेज योर टाइम, आप टाइम मैनेज करोगे तो यू विल एबल टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ओके। Based on ABC model during flower development, loss of class A activity result in the formation of only stamen and carpel. Which of the following floral organ identity genes control the class A activity? Class A, that ABC3 genes are responsible for the flowering. Okay, so here is the pictorial diagram where आप अगर इसे अच्छे से समझ लो तो you can easily solve any questions from the ABC model. A, B, C तीन genes होते हैं, B functions along with the A and C. A अगर अकेला present हो then it will form sepals, A plus B will form petals, B plus C will form stamens and C plus B will form carpel. Okay, अगर A absent होगा A and C are equally dominant. A के absent में C पूरे जगह को ले लेगा और C के absent में A will occupy whole the space. So in the absence of A, C will occupy whole the space and we know B plus C क्या बना रहे हैं stamens, C अकेला carpel. So sepals and petals will be absent. जो बचा होगा वो क्या होगा, that will be stamens and carpel only. और इस कंडीशन को बोलते हैं A petala 1. Okay. Similarly अगर B absent होगा then A and C will occupy equal space for the development. A alone will develop sepals and C alone will develop carpels. So this condition is known as when mutation is in G gene, then it is known as A petala 3, and if it will be on the C gene, what will happen? A will occupy whole of the space and A alone will form sepals, A plus B will form petals, A plus B petals, and A alone will again form sepals. So this condition is known as agamous. तो बचा क्या हमारा, क्या था, A के म्यूटेशन से क्या होता है, जीन 2 इज रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ ऑप्शन में अगर आप आए देन व्हाट इज गिवन हियर 1 and 2. So answer will be number 1. Next question is once again from developmental biology. इस टाइम काफी क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से थे, सो आई हैव डिसाइडेड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. Okay, so don't forget to subscribe my channel. Okay, so here in a given experiment, transplantation of micromeres from the vegetative poles of a 16-cell sea urchin embryo into the animal pole of a host 16-cell sea urchin embryo would initiate. Actually, micromeres is autosomal. ये microsomal जो है ये इसे पता है कि what he has to do, ये वही काम करेगा जो इसे आता है करना, ठीक है. एंड एनिमल पोल इज कंडीशनल, इसे जैसा कंडीशन मिलेगा उस हिसाब से ये डेवलप हो जाता है. माइक्रोमेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइमल सेल फॉर्मेशन, ठीक है. तो जैसे ये ट्रांसप्लांट होगा एनिमल पोल में, एनिमल पोल को पता नहीं है कि इसे क्या करना है, it is not specific in its function, but micromere is specific in function,
while animal pole is conditional. So animal pole will be developed as per the micromere's instruction. So the answer will be number 1. That is, the transplanted micromeres will cause invagination into blastocell to create a new set of skeletogenic mesenchymal cells. एक तो इन्वेजिनेशन इस साइड से प्रेजेंट था एंड एनिमल पोल के साइड में अगर हम लोग ट्रांसप्लांट कर दें माइक्रोमियर, देन अगेन दिस साइड आल्सो विल इन्वेजिनेट टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइमल सेल्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के. जस्ट आपको थ्योरी पता होना चाहिए इनका. और ये आप अगर देखोगे गिलबर्ट की बुक में, अगर आप देखोगे तो दिस स्टेटमेंट इज रिटन एज इट इज, आप सेम स्टेटमेंट पाओगे वहां पे. तो ये जस्ट स्टेटमेंट उठा करके यहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया गया है. यू नो नीड टू यूज योर माइंड, जस्ट गो थ्रू दैट बुक. दैट इज वेरी गुड बुक. Which one of the following is not a phenotype of dark brown seedlings that are etiolated? Etiolated मतलब क्या होता है? You can see a 2 diagram. This is the etiolated one. जहाँ हम स्टेम ग्रीन कलर के नहीं दिख रहे हैं, जहाँ के हमें ग्रीन कलर के दिखने चाहिए थे. Leaves are quite reduced. Hypocotyle are very large. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? शॉर्ट हाइपोकोटाइल. सो विदाउट एनी डॉट द आंसर विल बी दिस वन. एपिकल हुक, हुक आप देख रहे हो, एपिकल हुक. क्लोज कॉटलिडन, कॉटलिडन आप क्लोज देख रहे हो. नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोप्लास्टिक, बिकॉज इट इज नॉट ग्रीन सो इट विल बी नॉन फोटोसिंथेटिक. ओके, सो द आंसर विल बी शॉर्ट हाइपोकोटाइल. Which one of the following is the correct function of jasmonic gymdomin protein family, a key regulator of the jasmonic acid signaling response? तो ये obviously answer 1 है, because MC2 bind with the JAK and it prevent the transcription. So the answer will be number 1. Binding to MYC2 represses the jasmonic acid dependent genes. Next question is, the plant hormone gibberellic acid is generally not associated with stem elongation. तो इसका major function है, which is basically seen in case of sugarcane, parthenogenesis, malt production. Malt production अगर ज़्यादा stem elongation हो रहा है sugarcane में, then it will lead to the carbohydrate production. Yield increase करता है, so it will be there. Only the function which is not associated with gibberellic acid is the parthenocarpy. कैस्पेरिन स्ट्रिप्स क्या आप जानते हो फंक्शंस? तो ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही. जहां कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन ओनली दैट वन. ओके, सो आंसर फॉर दिस इज द नंबर 4. कैस्पेरिन स्ट्रिप इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज द बैंड विद इन रेडियल सेल, इट इज नॉट विद द रेडियल सेल. ओके, सो द आंसर स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इज द नंबर 4. यस, मैंने 32 नंबर शायद क्वेश्चन छोड़ा था ना आपके. ट्रांसफेरिन वाज देयर. यहाँ पर इसका फंक्शन दिया हुआ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द. ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसफेरिन यहाँ पर इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व नहीं होता है. तो यहाँ पर भी आपका आंसर एक दिया हुआ है, बिकॉज ट्रांसफर से नाम ही पता चला इट इज ट्रांसफरिंग समथिंग बट नॉट आयरन इन द इंटेस्टाइन. ओके, in which of the body fluid potassium ion concentration is higher than the sodium ion? It's dot in dot, it is endolymph. I am skipping most of the questions which don't have any concept. You just need to mug up that. आप उन सब चीजों को बस याद रखिए. Mammillary bodies are present in the hypothalamus. ये सब फिजियोलॉजी वाली बात है, आप उसको आप एनाटॉमी वाली बात है, आप इसे याद रखना. Reflex ovulation doesn't occur in case of rats. Okay, yes, 2 mutant plants both bearing white flower were crossed. All F1 generation were red colored flower. When an F1 plant was selved, it produces a progeny which either red or white colored flowers with 9:7 ratio. 9:7 रेशियो में क्या है? इट मीन्स क्या है? ये कॉम्प्लीमेंटेशन का है. अगर दोनों डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होंगे देन इट विल फॉर्म रेड कलर. अदरवाइज अगर दो जैसे ए
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर दोनों या हम बोले इस तरीके का कंडीशन प्रेजेंट होगा देन इट विल डेवलप इनटू रेड कलर, अदरवाइज इट विल नॉट डेवलप इनटू रेड कलर. सो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या एलिलिक कंडीशन होता है? नो, दिस इज द नॉन एलिलिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिल्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये इनका जो दो प्रेजेंट तो यहाँ पे एलिल्स है. जैसे कि अगर एलिलिक कंडीशंस कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर द मेंडेलियंस लॉ. मेंडेलियंस लॉ के बाद है ना नॉन मेंडेलिज्म, जिसे कि हम नॉन एलिलिक प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं. सो विदाउट एनी डाउट इट इज नॉन एलिलिक पेरेंट्स. ओके. In a linked map, two genes A and B are 70 centimeter apart. If the individual heterozygous for both the genes are test crossed, number of progeny with parental progeny will be equal because it is given the test cross and the distance between A and B is quite high. तो easily crossing over present होगा. जहाँ पे linked genes जो था वो Mendel's law को follow नहीं करते, but it is not linked. It can easily cross over. So it will give equal number of progeny with the recombinant phenotype. Okay. Next question is again theoretical. A researcher exposed Drosophila larvae to 37 degrees Celsius during their growth. One of the adult flies that emerged had a cross-vanless phenotype. Cross-vanless is known mutant in the Drosophila. When this cross-van fly was crossed to a known cross-vanless mutant fly, all the progeny have normal phenotype. The observed phenotype can be best explained is the example of conditional है ये. ठीक है, फिनोकॉपी प्रोटोपी तो होने से पेनिट्रेंस भी हो नहीं सकता. ये तो कंडीशनल है, जैसा जैसे कंडीशन मिला वैसा ये म्यूटेंट हो गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये जो है ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सारा कंडीशन. For example, phases are collected from an infected E. coli donor strain of genotype. दो जीनोटाइप है, एक जो है सिस्टीन पॉजिटिव, ल्यूसिन पॉजिटिव एंड थ्रियोनिन पॉजिटिव है, एंड अनदर इज सिस्टीन माइनस, यानी कि दिस इज एफ पॉजिटिव एंड दिस इज एफ नेगेटिव. अगर इन दोनों के बीच में कंजुगेशन हो रहा है और हम लोग इससे ट्रांसप्लांट करें किसमें, मिनिमल मीडिया में, वी आर ट्रांसप्लांटिंग इट टू मिनिमल मीडिया इन विच इज सप्लीमेंटेड विद ल्यूसिन एंड थ्रियोनिन. लेकिन सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, सिस्टीन भी चाहिए. तो वैसा जीनोटाइप विच कंटेन सिस्टीन प्लस होगा, दैट विल सर्वाइव. क्योंकि क्या है, ये ल्यूसिन नेगेटिव या थ्रियोनिन नेगेटिव रहेगा, इवन देन इट विल सर्वाइव. अगर ये सिंथेसाइज नहीं कर सकता है खुद से तो भी सर्वाइव करेगा. क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंटेड है, इट इज ऑलरेडी इन मीडिया. तो इसे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा जो चाहिए इसे, दैट इज ओनली सिस्टीन. सो जो भी ग्रुप में सिस्टीन पॉजिटिव देखिए आप यहाँ पर, जैसे लास्ट फोर्थ में ओनली सिस्टीन पॉजिटिव सिस्टीन पॉजिटिव सिस्टीन पॉजिटिव. अब ये बाकी कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है. तो जो सर्वाइव करेगा दैट इज ओनली नंबर 4. ये मैंने पहले भी आपको बताया लॉटका वोल्टेरा मॉडल में, R n into K minus n by K, this is the logistic growth rate, और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो होता है आपका R into n. So answer will be number B. Among the following statements which is the correct one for the holotype. holotype का ये theoretical meaning ही होता है कि वैसा species which is very isolated and that is basically used for the nomenclature. So the answer will be number 2. ये क्वेश्चन भी काफी इजी था. अगर आप इसको नहीं भी जानते, आपको इतना पता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू वास्कुलर टिश्यूज. ओके, सो अबाउट द वास्कुलर टिश्यू अगर बोला जाए तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकरी एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. वी नो दैट जाइलम फॉर द वाटर एंड फ्लोएम फॉर द फूड इन द वास्कुलर प्लांट. ठीक है, अगर हमें अभी डाउट है, मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर बोल रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द सेफ एलिमेंट्स लाइक पैरेन्काइमल्स एंड स्क्लेरल सेल्स. ये तो है ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है जाइलम में. ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है, ये डेड सेल्स मानते हैं ना हम लोग इसे जाइलम को. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमुलेशन ऑफ वास्कुलर प्लांट्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रैकेरी एलिमेंट्स. ट्रैकेरी ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमुलेशन तो करता नहीं है ये.
that is only for the transportation of water. It is responsible for the transport of assimilates in both vascular and non-vascular plants. ये सिर्फ vascular plants में responsible होता है. तो answer to without any doubt it will be number 1. ये आप याद कर लें. एंटी मलेरियल ड्रग किससे मिलता है हमें? आर्टिमिसिया एनवा से. कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है? कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन विदाउट की आप घर के अंदर नहीं घुस सकते हो. ये कीस्टोन स्पीसीज को हम लोग पॉजिटिव रेस्पेक्ट में लेते हैं. ठीक है, ये नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता एनवायरमेंट को. इट ऑलवेज इफेक्ट एनवायरमेंट इन पॉजिटिव मैनर. सो अगर हम बोलते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन अ कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट टू इट्स एबंडेंस, अगर ये इसको हटा दिया जाएगा तो दूसरी स्पीसीज के एबंडेंस को ये इफेक्ट करेगा. ठीक है, लेकिन ये इस एबंडेंस ये खुद के एबंडेंस पे इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसके प्रेजेंस से इफेक्ट होता है. तो इसके एबंडेंस से कोई मतलब नहीं होता है. सो द आंसर विल बी नंबर 2. A species whose life history strategies allow for high intrinsic rate of increase R strategies की अगर बात करते हैं, यहाँ पर R फैक्टर, R एंड K strategies होते हैं. R की बात अगर हम लोग करते हैं, that follow the type 1 graph. ओके, तो यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 सर्वाइवल ग्राफ्स बोल रहे हैं. लेकिन ये क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस टाइप का टाइप 1 होता है, ये टाइप 3 सर्वाइवल, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 होता है. तो आर क्या होता है? टाइप 1 फॉलो करता है, 1 या 2 तो नहीं फॉलो कर सकता. सो द आंसर विल बी नंबर 4. इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो ये तो थ्योरेटिकल है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था बिकॉज पैरासिटिक फूड की अगर हम बात करें तो आई विल गिव यू एग्जांपल. काउ के ऊपर बहुत सारे लाइस होते हैं. ठीक है, काउ 1 लाइस आर सो मैनी इन एंड लाइस आर पैरासाइट ओवर काउज. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? नंबर इज इंक्रीजिंग. सो this will be the number of parasitic food and pyramid of biomass in the pond ecosystem. Pond ecosystem की अगर biomass की बात करें तो small fishes is feeded by the large fishes. ठीक है, जिसका biomass ज़्यादा होता है in comparison to smaller fishes. So the answer will be number 1. Again theoretical questions. मोटो किमुरा natural theory पे based है. So I'm directly coming to the answer, which is number 3. I will explain you separately all these terms about the developmental biology and all these terms कि कैसे इनका क्या theory था, how it come to exist. तो ये मैं सारा आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, अभी मैं जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स कवर कर लेती हूँ, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेती हूँ. Which of the following statement is not true about the homologous character? मैं डायरेक्टली आंसर पे आती हूँ, which is number 3, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ओटापोमॉर्फी. ओटापोमॉर्फी क्या होता है? अगर इसके हम इस तरह से देखते हैं, एंसेस्टर से डिराइव कैरेक्टर नहीं होता है, इनका एक अपना अलग कैरेक्टर डेवलप होते हैं. ठीक है, एंसेस्टर से डिराइव नहीं होते हैं ये कैरेक्टर. तो यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर से डिराइव हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. Which one of the following trees represents fully resolved phylogram? Fully resolved phylogram का मतलब होता है कि एक एंसेस्टर से सिर्फ 2 ही प्रोजेनी का बाहर आना, only 2 progeny from a common ancestor. ओके, तो यहाँ पर आप देखो it is 3, there are 3 progeny, तो ये तो हो नहीं सकता. Here is also 3 progeny, ये हो नहीं सकता है. इन दोनों में 2 प्रोजेनी आ रहे हैं, एक एंसेस्टर विथ ओनली 2 प्रोजेनीज. बट मोर अप्रोप्रिएट मुझे ये लगा बिकॉज यू कैन सी हियर द अबाउट दिस एंड दिस कि काफ़ी लंबे तक जा रहे हैं, और ये हम लोग फाइनेटिक ट्री को कैसे ऑलमोस्ट इक्वली ये हम लोग जो एंड है ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है. ठीक है, मुझे बहुत अप्रोप्रिएटली मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बीच में जो ये जो शॉर्टर लेंथ आ रहे हैं ये जनरली एब्सेंट होता है. इसका ये क्या मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस हो गया, ये कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो रहा है. अगर रिजॉल्व कम्प्लीटली अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें, इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्ड in number 3. So the answer will be number 3.
दिस क्वेश्चन ऑल्सो नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन बिकॉज देयर इज ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कहने की कोई जरूरत नहीं। स्पीसीज का सीक्वेंस और इसके एबंडेंस के कुछ कर्व्स होते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल कर्व्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो आंसर आता है दैट इज नंबर 3। आप इसे मैच करा करके देख लो ए विच इज द ब्रोकन स्ट्रिक, B is the log normal. You can see a log normal, and C is the geometric series, a straight line toward the x-axis. It is a geometrical species. So the answer will be number 3. Which of the following microscope would you use to visualize a protein fused to appropriate reporter in a living cell? Living cells के लिए क्या करते हैं? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा कि हमें सेल्स को बाहर निकालना होगा, दैट विल बी नॉट लाइव। फ्लोरोसेंस में क्या है, वी इंसर्ट अ फ्लोरोसेंस कंपाउंड along with the genes, complementary genes to find out the appropriate reporter genes in the living cell. So the answer will be number 1. Which one of the following statements regarding use of hybrid nucleases for the plant genome engineering is incorrect? तो इसका आंसर डायरेक्टली आती हूँ और इसे एक्सप्लेन में कर देती हूँ। जीन finger nucleases are efficiently target all the nuclear genes with equal efficiency. पहला तो ये सारे न्यूक्लियर जीन्स को टारगेट करेगा नहीं विथ इक्वल एफिशिएंसी, बिकॉज जीन फिंगर के लिए क्या है, स्पेसिफिक उसका अपना बाइंडिंग डोमेन है। तो ये सो द ऑप्शन विल बी नंबर 3। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन जहां तक मुझे पता है सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डबल बॉन्डिंग का ट्रांजिशन होता है, बट हाउ इट्स सेइंग इट्स लेस एनर्जी बिकॉज एज पर केमिस्ट्री लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इसके सिग्मा बॉन्ड्स जो हम लोग फिल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको याद होगा कुछ इस तरीके का आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हम लोग फीलिंग स्टार्ट करते हैं वन से वन इस तरह का कुछ फीलिंग करते हैं, दैट इज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी करते हैं। तो ये आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। ये क्या है आंसर, जबकि ये दिया हुआ है काफी जगह से मैंने देखा है, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया है। सो सॉरी फॉर दिस। आपको किसी को पता है तो प्लीज कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी इफ आई कैन लर्न फ्रॉम यू। Move to the next one. Which of the following host system is best suited to express large amount of glycosylated proteins for structural bodies? Structural proteins के लिए क्या है, हमें पता है कि नेटिव प्रोटीन जो होता है बिकुलो वायरस का, दैट इज फॉर द स्ट्रक्चर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज यूज फॉर द मार्कर, ठीक है। और ये स्लाइम प्रोडक्शन के लिए भी समटाइम स्लाइमी लाइक स्ट्रक्चर भी देता है, ठीक है। सो द आंसर विल बी नंबर 3। Which of the following statements about yaks is false? Because false, it can be readily undergo recombination. So the statement is saying about rare because recombination is very poor. But recombination is not poor in yaks. It is quite high in case of yaks. So the statement wrong is here number 3. In an intact cell patch experiment, what we do? Actually, we measure the potential difference across the phospholipids membrane. So, where it is created, कहाँ ये create होता है? Inner side negative होता है जनरली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो, और आउटर साइड पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रोड हमें चाहिए जो कि that will be inserted in the lipid layer, और एक हमें चाहिए जो कि वो जो हम लोगों ने मैटर लिया है, जो हम लोगों ने पिंच ऑफ किया है, दैट मस्ट बी कंटेनिंग एन आयन चैनल। आयन चैनल यानी कि सोडियम आयन इसमें प्रेजेंट, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन चैनल या प्रेजेंट होना चाहिए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को रेगुलेट करे। क्योंकि अगर ये पैच क्लैंप में हम लोग क्या करते हैं, जनरली पिंच आउट अ पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग एटलीस्ट वन सेट ऑफ योर आयन चैनल्स, ठीक है। तो अगर ये एब्सेंट होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? सो 2 इलेक्ट्रोड्स वी यूज, one will be inserted across the lipid layer and one will be one containing at least containing one set of ion channels. So answer will be number 3. So all these were this time.
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मच क्वेश्चंस वेर फ्रॉम, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया और वैसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं. आई विल डिस्कस यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज सी सेक्शन में मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील कर दिए हैं. बी सेक्शन में जितने भी रिक्वायरमेंट थे एक्सप्लेनेशन के मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो सिंपली यू कैन जस्ट मग अप, आप जिसे याद कर सकते हो, जिसे बस थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने छोड़ दिए, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है. क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या है कि यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थ्योरी. तो वो सब मैं जो जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, मैंने एक्सप्लेन किया. और जिसमें थ्योरेटिकली चाहिए कि आपको उनका कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ थे, और जैसे कि कुछ जाइलम्स के थे. तो वो सब थ्योरेटिकली जो थिंग्स थे वो मैंने स्किप किया है मोस्ट ऑफ द पोर्शंस. So don't forget to subscribe and share my channel, because next time we will discussing about the all the questions. What was the most prominent questions of this time, because इसके एनालिसिस से हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं. So don't forget to subscribe.